Good morning students and welcome to the class. As we have completed our chapter number 4 in our English reader, we have done the hard words also, words meaning also, and we have completed the chapter also. So today we are going to sum up the chapter. Today I am going to tell you the summary of this chapter. The name of the chapter is, so listen carefully. The name of the chapter is The Trumpet of the Swans. Okay? Swans. Before it, I was just tell you the name of the writer. Who is the writer of this? The writer is Alvin Brooks White. Okay? He is an American writer and he is famous for the books of children. Means he wrote mostly books for the children. Now, and this chapter that we are reading, this is an extract only of this, The Trumpet of the Swan. That's written in your book also that it is the extract of this, The Trumpet of the Swan. The extract means a small part of this book. Okay. So, now we are going to sum up this chapter. I am going to tell you the summary of this story. The name of the chapter is The Trumpet of the Swans. Swans means swans are the name of birds. Swan is the name of bird and trumpet means the sound of swan. Swan की जो sound होती है, if I say what is the sound of dog, you will say bark. Now I will ask what is the sound of a sparrow, then you will say chirp. And what is the sound of cat? Mew. The same, the sound of the swan is trumpet. Trumpet is the sound of swan. Okay. This story is based on a boy and two swans, or we can say on a couple of a pair of a swan. In this story, there is a boy, his name is Sam Beaver and his name is Sam Beaver. He is 11 years old. What happened one day as he was moving from the forest? एक दिन सैम, जो कि इस बॉय का नेम है, ये फॉरेस्ट से जा रहा था. Suddenly he listened a sound, trumpet. अचानक से उसे चलते चलते साउंड सुनाई दी. कौन सी? Trumpet. And he was startled. Startled means he was surprised. He just understand the voice. वो पहचान गया ये तो swans की voice है और इसका मतलब इस forest में swans हैं. So he just try to look here and there to find the swans. इसलिए वो इधर उधर swans की voice के साथ उनको ढूंढने लगा. And after some time in a shallow part, एक जगह उसे क्या, झाड़ियों के पास उसे swan दिख गए. And he was very happy. He was very happy. वो swans को देख के बहुत ज़्यादा excited हो गया. He was very happy. He sat on the log. Log means this is known as log. L-O-G, log. Log means in Hindi we say लट्ठा, लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा. When we just cut the tree, the pieces of the wood are known as log. जब हम पेड़ को काटते हैं तो उसके जो बड़े बड़े डंड निकलते हैं ट्रीज के, दे आर नॉन एज द लॉग. ओके. ही सेट ऑन द, देयर वॉज अ लॉग एंड ही जस्ट सेट देयर. वो वहाँ पर बैठ गया और उनको चुपचाप से दोनों स्वान्स को वो देख रहा था. ओके. बट द एनिमल्स ऑल्सो हैव द, यस दे ऑल्सो हैव द सेंस. उनमें भी सेंस होता है. सो द स्वान जस्ट थिंक दैट हियर इज सम इंट्रूडर. And she looked here and there and she found a boy. जो स्वान है जो कि वहाँ पर क्या कर रही थी? Eggs ले कर रही थी. उसे लगा कि यहाँ कोई है जो हमें देख रहा है, कोई इंट्रूडर है. तो जब उसने इधर उधर देखा तो उसे झाड़ियों के पास कौन दिखाई दिया? एक बॉय नज़र आया. ओके. सो शी टोल्ड टू द कॉब. उसने ये वाली बात किसको बताई? C-O-B, cob. And cob means male swan.
उसने मेल स्वान को बताया डैट देयर इज अ इंट्रूडर। देन द कॉक सेड आई विल नॉक हिम कॉल्ड, आई विल नॉक हिम कॉल्ड। कॉक को जैसे ही मालूम पड़ा कि यहाँ पे कोई बॉय है, उसने देखते क्या बोला, हाउ कैन ही कम हियर, वो यहाँ कैसे आ सकता है, ही हैज़ नो फेदर्स, उसके बर्ड्स तो फेदर्स तो होते ही नहीं है। देन दे लुक इट केयरफुली एंड दे वर सरप्राइज्ड कि ये जो बॉय है इसके पास गन तो नहीं है। और जब भी कोई आता है तो एनिमल्स क्या सोचते हैं, ज़रूर ये कोई हंटर है और हमको क्या करने आए हैं, हमें मारने आए हैं, फॉर हंटिंग अस, हमारा शिकार करने आए हैं। बट स्वान्स ने क्या देखा, that he has no gun and he is just sitting quietly. But the cock said, मैं अभी उसको जाके क्या कर देता हूँ, अपने पंख से इतनी जोर से मारता हूँ, knock him cold. Knock him cold means किसी को इतनी तेज मारना कि वो बेहोश हो जाए, okay? Then the swan said, he is sitting quietly. तो स्वान ने को आपको क्या बोला, वो तो चुपचाप बैठा हुआ है, वो तो हमें परेशान भी नहीं कर रहा है, ना कोई पत्थर फेंक रहा है, तो हम उससे जाके क्यों अटैक करें, ओके? देन कॉब वॉज ऑल्सो अग्री, तो कॉब भी स्वान की बात से अग्री हो गया। 4.5 hours 1 hour ही जस्ट सिट हियर, ये लगभग 1 घंटे तक यहाँ बैठा रहा और उनको निहारता रहा। ही वॉज फीलिंग सो हैप्पी, वो अंदर से बहुत हैप्पी हो रहा था कि मैं 2 स्वान्स को देख रहा हूँ जो पॉन्ड पे घूम रहे हैं, और वो साथ में क्या है, जो फीमेल स्वान है वो एग ले कर रही है, ओके? सो ही जस्ट आफ्टर सम टाइम ही जस्ट मूव फ्रॉम हियर, थोड़ी देर बाद ये यहाँ से उठकर चला गया। जब ये यहाँ से चला गया, द स्वान्स वर हैप्पी, दे वर फीलिंग रिलैक्सड, उन्होंने रिलैक्स फील किया कि अब यहाँ पर कोई नहीं है। दैट टाइम द स्वान हैज़ लेड हाउ मैनी एग्स, स्वान ने कितने एग्स ले किए हैं, 4 eggs, एंड शी वॉज हैप्पी ऑल्सो, शी वॉज जस्ट टेकिंग केयर ऑफ द एग्स, वो क्या कर रही थी, उन एग्स का टेक केयर कर रही थी, देखभाल कर रही थी। शी जस्ट सिट ऑन द एग, जो बर्ड्स होते हैं वो अपने एग को, जब तक कि एग हैच नहीं होता, फूट के उसमें से चिक बाहर नहीं आता है, दे जस्ट सिट ऑन इट टू इंक्यूबेट इट, टू इंक्यूबेट द एग। जो बर्ड्स होते हैं लाइक हैन, लाइक डक, लाइक स्वान, जब तक इनके एग हैच नहीं होते, जो फीमेल होती है वो एग के ऊपर बैठी रहती है उनको इंक्यूबेट करने के लिए। इंक्यूबेट मीन्स टू गिव देम अ परफेक्ट टेम्परेचर, ओके? So she was sitting there only. अब now what happened? He has gone. वो तो चला गया. After few days, weeks later, अब क्या हो गया? कुछ weeks बीत गए. Weeks भी means lot of days were there. She was sitting on the egg. वो egg पर ही बैठी थी. Okay? जैसे कि मैंने बताया for hatching it. The cock was moving here and there, and cock asked the swan, "Are you not feeling uncomfortable?" कॉब ने क्या पूछा स्वान से, यहाँ बैठे बैठे तुम अनकंफर्टेबल फील नहीं करती हो क्या? क्या तुम थकती नहीं हो? क्या तुम्हें प्यास नहीं लगती? तुम कितने दिनों से इन पर बैठी हुई हो? देन स्वान सेड, नाउ इट्स द टाइम ऑफ ओनली फ्यू डेज, अब तो कुछ दिनों की बात है, आवर सिग्नेट्स आर गोइंग टू बॉर्न, जो सिग्नेट्स हैं वो हैच होने वाले हैं। एंड सिग्नेट मीन्स यस यंग स्वान्स मीन्स हैच, जैसे जो हैन है, हैन का जब हैच होता है एग, दे आर द चिक्स, चिकन, सेम द यंग वन ऑफ स्वान्स आर सिग्नेट्स, व्हाट वी से, CYGNETS, सिग्नेट्स, ओके? देन द कॉब सेड, कॉब ने बोला क्यों ना तुम थोड़ी देर, अभी मैंने चारों तरफ देख लिया, एवरीथिंग इज सेफ, यू कैन जस्ट गो एंड मूव टू द पॉन्ड। कॉब ने बोला तुम थोड़ी देर पानी में चली जाओ, बहुत दिन हो गए तुम एक ही जगह बैठी हुई हो, ओके? एंड आई विल टेक केयर, और मैं क्या करूँगा, मैं ध्यान रखूँगा किसका, ऑफ द एग्स, ओके? ताकि कोई दूसरा एनिमल आके उन पे अटैक ना कर दे। सो स्वान जस्ट मूव फ्रॉम देयर, स्वान एग के पास से चली गई, एंड शी जस्ट थर्स्ट इन द वाटर, शी जस्ट प्रीन हर फेदर्स, वो पानी में उसने बहुत जोर से डुबकी लगाई। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम शी वॉज इन द वाटर एंड शी वॉज मूविंग हियर एंड देयर, वो इधर उधर घूम रही थी, वो अपने फेदर्स को प्रीन कर रही थी, क्लीन कर रही थी। तभी एट द सेम टाइम द कॉक जस्ट फील दैट हियर इज समवन, उसी समय क्या लगा कॉक को कि यहाँ पर कोई है। व्हेन ही सर्च, उसके पता लगा कि पास में कौन है, देयर इज अ फॉक्स, देयर इज अ
fox. So he just trumpet and say to the swan, be careful. And they were frightened also. कॉक ने ट्रम्पेट की आवाज़ से स्वान को बताया कि आसपास कौन है, एक फॉक्स है, इसलिए थोड़ा केयरफुल हो जाओ। और वो क्या हो गए थे, थोड़ा डर भी गए थे। एज द फॉक्स वॉज कमिंग, जैसे ही फॉक्स उनके पास आने लगा तो ये दोनों तो बहुत डर गए। दे वर फ्राइटेंड। एट द सेम टाइम फ्रॉम अ प्लेस दे डोंट नो, कहीं से एक बहुत बड़ी लकड़ी का टुकड़ा आया और जो डायरेक्ट किसके लगा, ऑन द फॉक्स। किसी ने एक लकड़ी का टुकड़ा फॉक्स के ऊपर मारा। एंड फॉक्स वॉज हर्ट ऑन द नोज, फॉक्स के नोज पर क्या हुआ, लग गई। एंड ही जस्ट रैन अवे फ्रॉम हियर, और वहाँ से वो भाग गया। एंड दे वर नाउ सेफ। एंड व्हेन दे सॉ हु वॉज देयर टू हेल्प देम, और जब स्वान्स ने देखा कि फॉक्स तो भाग गया है क्योंकि किसी ने उस पर क्या कर दिया, अटैक करके उसको भगा दिया, तब स्वान्स ने देखा कि कौन है। देन दे रियलाइज दैट देयर वॉज अ सेम बॉय हु जस्ट केम बिफोर अ मंथ। तो उन्होंने देखा कि वहाँ तो एक बॉय है, और ये बॉय कौन सा है, द सेम बॉय, ये तो वही बॉय है जो लगभग 1 महीना पहले भी यहाँ पे आया था और इस लॉग पर बैठा था। बट नाउ दे वर नॉट फीलिंग फियर फ्रॉम दैट बॉय। लेकिन अब जो ये स्वान्स हैं वो उससे क्या हुए, डर नहीं रहे थे, क्योंकि वो समझ गए थे कि हमारी हेल्प किसने की है, दिस बॉय। सो द स्वान केम नियर द बॉय एंड यूज अ वॉइस कोहो कोहो। तो स्वान उसके पास आई और कौन सी वॉइस निकाली उसने अपनी, कोहो कोहो। मीन्स वो एक तरह से, स्वान जो है एक तरह से उस बॉय को क्या कर रही थी, थैंक्स। शी वॉज थैंकिंग टू सेव देयर लाइफ। अंडरस्टैंड कि स्वान ने आकर इसके पास आई और शी जस्ट ट्रम्पेट, दोनों बहुत जोर से ट्रम्पेट करने लग गए, जैसे कि वो बहुत खुश हो रहे हैं और वो इस बॉय को थैंक यू बोलने की कोशिश कर रहे हैं। द बॉय वॉज ऑल्सो हैप्पी, वो बॉय भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हुआ। एंड ही जस्ट सैट देयर फॉर मोर सम टाइम, और वो बॉय वहाँ बैठ के उनको देखता रहा। बट नाउ द स्वान्स वर फ्री बिकॉज दे अंडरस्टैंड दैट ही इज़ नॉट अ हंटर। लेकिन स्वान्स भी अब फ्री होके घूम रहे थे क्योंकि वो समझ गए थे ये बॉय कोई हंटर नहीं है। अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस स्टोरी व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड, व्हाट्स द मैसेज, द मैसेज इज देयर, द बर्ड्स और द एनिमल्स वी शुड नेवर हर्ट देम। जो एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, हमें उनको हर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बर्ड्स ऑल्सो थिंक दैट अगर वो किसी इंसान को देखते हैं तो वो क्या सोचते हैं, दैट दे विल थ्रो द स्टोन ऑन अस, कि ये तो हम पर पत्थर या स्टोन फेंकेंगे। सो वी हैव टू नॉट डू दिस टाइप ऑफ डीड with the animals and birds. Okay, this was today's story. We can say we have just done the summary of this chapter. This was the summary of the chapter, the trumpet of the swans. Understand? The boy name is Sam Beaver, 11 years old. The writer of the chapter is Alvin Brooks White. This is a swan, and male swan is known as cob and young swans are known as cygnets. Okay student, this was all for today. After this, now we will do the question answer. Thank you students.